नाजरीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? अच्छा खुद क्यों सी वाला क्यों पता है मैं सूट अजीब जी पाया हिना आज बावर्ची खाने सीधा उठ के आया नहीं ਉਹਦਾ सूट एडा अच्छा है। थैंक यू। पेंटर दे फटे वर्गा सूट पाया जिसते मुख्तलिफ कलर होते हैं। वैसे ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। लगता है आज कोई अंग्रेजी की कोई आर्टिकल पढ़ के आए हैं, कोई नई किताब पढ़ के आए हैं। बाबे ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੜਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾ ਲੈਂਦਾ या शेर पा ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ सही बात ਤੇ है। ਆਪ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਬਾਬਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਸਫ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਗੁੱਤ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ। ਝੂਠੇ ਝੂਠੇ ਸਾਡੀ ਬਾਬੀ ਤੇ ਗੰਜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਾਲ ਪੈਣ ਡਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੀ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਦਾ। हिना नियाज़ी जी, इतना बुरा भी नहीं मेरा माजी। हमारे आज के पहले मेहमान का नाम ही उनका तारुफ है। अखवत फाउंडेशन के रुए रवां जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब। हमारी आज की दूसरी मेहमान प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता हिना नसरुल्ला साहिबा। क्या हाल है डॉक्टर साहब आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। हिना आप कैसी हैं? रमज़ान कैसा गुजर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत मुबारक। और आपका शो बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा माशाल्लाह परफॉर्म करते हैं। आपको बहुत मुबारक इस नए शो थैंक की। यू। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत कामयाबी दे। रमज़ान अच्छा गुजर रहा है, मसरूफ़ गुजर रहा है और आपके साथ भी हूँ अभी। और हमारे साथ इस वक्त शो में मेहमानों के अलावा कुछ बिन बुलाए मेहमान भी मौजूद हैं जो कि प्रोफेशनल बेगर्स हैं और पहले भी हमारे शो में आते रहते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम इनको समझाएं कि ये काम अच्छा नहीं है, कोई और मेहनत वाला काम कर ले, मांगने में कुछ नहीं रखा हुआ। पहले तो ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਨਾਬ मैं तेन हाथ सकना मेरे को लगा एक्सक्यूज मी, आप लोग हमें 10 दिन से कॉल कर रहे हैं कि राशन बैग्स कब आएंगे, हमें कब बुलाएंगे। हमने नहीं आपको बुलाया। नहीं साਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ बैग बन गए ने ਤੇ दूसरा फोन ਅਸੀਂ करना ही नहीं। भाई राशन बैग्स अगर बन भी गए हैं तो आप लोगों को थोड़ी मिलेंगे। ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹਿਨਾ ਦਾ ਜੀ। क्यों? ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਨ ਮਿਲਾਏ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ? अब कुंडी ਨਾਲੇ लगानी ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ पड़ेगी। ਪਿਛਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਆਦਤ ਪਾਈ ਭੈੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੀਏ। ਉਹ ਮਰੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੀਸ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੇ। आसिफ साहब आप मुझे एक बात बताएं, आप इस चीज को इनकरेज क्यों कर रहे हैं? आपने क्यों इशारे पे इनको पैसे दिए? ਉਹ ਤਰਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਡਾਂਗਾ ਫੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਰਾਈ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੁਲਬਰਗ 'ਚ ਕੋਠੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। गुलबर्ग में? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾ ਮਾਫ ਕਰ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕਢਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇਖੋ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਗੋ ਹੈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਨ ਆਂਟੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਜੈਮ ਲੈ ਦੇਵੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਸਖੀ ਹੈ ਨੇ ਮਗਰ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਸਗੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾ ਦੇਵੇ। चलें जी, हैं आप लोग प्रोफेशनल बेगर्स, डिमांड्स अपनी चेक करें। आजकल एक आम आदमी नहीं पिज्जा खा सकता। भाई आप लोगों को कोई कहां से पिज्जा दे? ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਫ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਡਏ, ਕੋਈ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇ। ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਦੰਦੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੱਡੀ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੀ? ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜੇ ਪਕੌੜੇ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਬਤਾਊ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਸਖਾਵਤ ਕਰੀ ਦੀ ਓਏ, ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ। ਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਟਦੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ? कैसे? ਬੱਚਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਐਡਾ ਕੰਜੂਸ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ਕੀਨ ਆ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਮਾਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਦੇ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰੰਚੀ ਆ। नहीं पिज्जा के अलावा दाल साग खा लेते हैं आप लोग? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਜੀ ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ? चलो ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਚਿਕਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਟਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਸ਼ੋ ਜਾ ਕੇ ਸੁਚਲ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਬਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਫਾ ਜਾ ਪੀਨਿਆ, ਬਗੈਰ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕੈਸੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਫਕੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ बनती है, समझ आई ना? इंडिया में से आप भी बड़ी चालाक है। कि क्यों? हमारे मांगने पे आपको इतराज है और आप लोग मांग तांग के कई सालों से 70 सालों से अपने मुल्क की इकॉनमी चला रहे हैं। कौन मांगता है मुझे बताएं जरा। अच्छा तो आप उस कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर यहाँ पे बैठ के मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब, अखुवत के कर्ज़े हसना के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी हमारे देखने वालों को बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कर्ज़ हसन में तो पूरे दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसमें अल्लाह की रहमत, इसका फ़लसफ़ा इस प्रोग्राम का और इसके कर्ज़ हसन की बरक़ात शामिल हैं। जी। तो फिर इसी के कामयाबी को देखते हुए कुछ और काम हमने शुरू किए। एक हमने तालीमी मनसूबा जिसमें हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसमें भी हमने कहा कि बच्चे आज फ़ीस नहीं देंगे बल्कि 10 साल बाद फ़ीस देंगे या 20 साल बाद फ़ीस देंगे, जब वो फ़ीस देने के काबिल हो जाएंगे। तो इस हवाले से हम काम कर रहे हैं। फिर हमने ख्वाजा सराओं की बेहतरी के लिए एक प्रोग्राम बनाया कि ये भी तो हमारे अज़ीज़, हमारे जिगर गोशे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा क्लोज़ बैंक बनाया है, जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हों या वो फैशन चला जाए या रंग ख़राब हो जाए या उनको अच्छे न लगे, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप कपड़े हमें दे दें, हम उनको ड्राई क्लीन कराते हैं, पैक करवाते हैं और फिर उन लोगों को पेश करते हैं जिनके पास वो कपड़े नहीं हैं। तो आपको सुनकर खुशी होगी कि 30 लाख जोड़े माशाअल्लाह हमने इकट्ठे किए, वो लोगों को दे रहे हैं। जबरदस्त। फिर एक हेल्थ का भी हमारा प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीना है, इसमें राशन पैक लोग हम पर एतमाद करते हुए हमें वसाइल देते हैं और हम राशन बैग ज़रूरतमंदों को पेश करते हैं। घरों की तामीर के लिए कर्ज़े देना शुरू किए हुए हैं, तो तकरीबन 25,000 घर हम बना चुके हैं लोगों को कर्जा दे के। जबरदस्त। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। तो बुनियादी तसव्वुर यही है कि मवाक़ात मदीना कि एक आदमी को अपना ले। 50% पाकिस्तानी अगर हैव्स हैं तो 50% हैव नॉट्स हैं। तो ये 50% और ये 50% मिल जाएं तो हम एक अच्छा मुआशरा बना सकते हैं। बेशक, ये इसका तसव्वुर है। आप खुशियाँ बखेरते हैं, आपके साथी सारे, तो लेकिन ये है कि लोगों की ज़रूरियात पूरी होंगी तभी खुशी अच्छी लगती है ना? अच्छी लगती है, बेशक। तो ये कुछ बुनियादी काम बहुत है। खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ना। आप मुझे ये बताएं कि किस उम्र से आप कलाम पढ़ रही हैं और क्या कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, किसी से तरबियत ली या फिर ये इन बिल्ट है, बाय गॉड ये गिफ्टेड है? तो ये गॉड गिफ्टेड। और दूसरा घर का माहौल बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि आपकी कैसी तरबियत हुई, आपके वालिदैन ने कैसी तरबियत की। और स्टार्ट जो है मैंने रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न से किया एज अ चाइल्ड स्टार, और बचपन से ये स्टार्ट था और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। ज़बरदस्त। तो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि घर में जो है ना सपोर्ट किया जाए, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, वालिदैन की तरफ से, और बाप की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो वालिद साहब ने भी फुल आपको सपोर्ट किया? अब्बू ने बिल्कुल सपोर्ट किया और डेफिनेटली उनकी सपोर्ट की वजह से ही अब तक मैं यहाँ बैठी हूँ और काम करी, और अल्हम्दुलिल्लाह
पूरी दुनिया में ट्रैवल करती हूँ और अल्लाह और उसके हबीब का कलाम और बुजुर्गान दीन के कलाम को आम करती हूँ। माशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला का मुझ पर फजल है और उसके बाद वालिदैन की दुआएं, उनकी सपोर्ट। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। मेहमानों से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो कि डिजर्विंग लोगों का भी हक मार देते हैं और उन तक उनका हक पहुंचने नहीं देते? नहीं, अगर तो ये सच्ची बात है कि ये प्रोफेशनल हैं तो फिर तो ये बहुत बुरी बात है कि इनको कोई काम करना चाहिए, कोई अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि मांगने वाले से देने वाला बेहतर है। इसको काम को अपना एक पेशा नहीं बनाना चाहिए। अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको काम करे आप। माशाल्लाह ये तो मुझे सारे चलते फिरते हट्टे कट्टे हैं सारे नौजवान नज़र आ रहे हैं, सफर सिर्फ यही कमज़ोर से लगते हैं। डॉक्टर साहब 3 हट्टे जे और विचकारला कट्टा जे। और इस तो अलावा डॉक्टर साहब रात ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜਿਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੇ ਐ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਰ ਫਿਰ ਖੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। बुफे होते हैं पूरा इनके ਕੋਈ पास, ਸ਼ਾਪਰ ਚੋਂ ਜ਼ਰਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ मंचूरियन भी, कीमा भी, आलू साग भी, पता नहीं क्या ਇਹਨਾਂ ਜੀ क्या। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕ ਲਾਈ ਨਾ ਜੀ, हाँ जी, ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਟੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ। ਨਮੂ ਤੇਰੀ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ 14 ਦੇਗਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਾਉਣੀਆਂ। ਆ ਫੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਈ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਬੈਠੀ ਇਹ ਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੂਰਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਗੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। अच्छा वो ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਲਾਈ ਅੱਗੇ। ਆ ਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਵੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਲਾ। वैसे ठेकेदार साहब, अब तक कितने पैसे आप लोगों ने इकट्ठे कर लिए मांग तांग के? ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ? मैंने ये इनसे पूछा है कि रमजान में मांग तांग के कितने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं? ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਸਰੀਹਨ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ 20 ਫਕੀਰ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੀ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 5 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਵਾਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਮਾੜਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਜਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਨਾ ਬੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ कहते हैं जानू आज आप बहुत हसीन लग रही हैं। वो कहती है अन्नी दिया तू ते अन्ना है। डॉक्टर साहब, आपको खुद फाउंडेशन की तरफ से एक तालीमी इदारा बनाने का ख्याल कैसे आया? जी देखें, हमने कहा कि ये छोटे कर्ज़ों से तो फौरी तौर पर आप किसी बेरोज़गार को रोज़गार पे लगाते हैं जी, लेकिन जो मुआशरों में असल तब्दीली आती है ना वो तालीम की वजह से आती है। आप देखें, आप ये गदागरी के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं, तो जब तक तालीम नहीं होगी उस वक्त तक शऊर नहीं आएगा, उस वक्त तक किसी मुआशरे में तरक्की नहीं होगी। दुनिया में देखो ना, तरक्की याफ्ता ममालिक में और हम में फ़र्क क्या है? ना कोई कद में फ़र्क है, ना कोई ताकत में फ़र्क है, ना कोई जहानत में फ़र्क है, ना कोई हिम्मत में, सिर्फ़ और सिर्फ तालीम की कमी है। और तालीम की वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो फिर हमने कहा कि जो माँ बाप तो अपने बच्चों को फ़ीस दे के पढ़ा सकते हैं वो तो ज़रूर पढ़ाएँ, पढ़ा रहे हैं। तो वो जो लाखों करोड़ों बच्चे जिनके पास फ़ीस नहीं है, सलाहियत है, तो हमने कहा कि वो आज पढ़ लें, जब वो कल कमाने के काबिल हो जाएंगे तो फिर फ़ीस उस वक्त दे दें। उस फ़ीस से फिर कोई और बच्चा पढ़ेगा, तो ये शम्मा से शम्मा रोशन होती चली जाएगी। तो ये एक छोटी सी एक हम्बल एफर्ट है कि जहाँ पर रोज़गार मिल रहा है वहाँ पर तालीम भी आम हो जाए। इसी तरीके से हम मुआशरे को बेहतर बनाने की उन कोशिशों में शामिल हो सकते हैं जो आप सब लोग कर रहे हैं। पढ़ा लो बच्चे, मनूसो पढ़ा लो, कल ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। आसिफ साहब, अमजद भाई का ये मकसद है कि
शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। क्यों जी? अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बाबा तेरे को किताबें चुक ली तू टके नहीं है मैं तुम दसा नहीं तुसी शम्मा जला रहे हो, अपना ते ਤੁਹਾਡਾ दिया बुझिया होया है। निर्मल, हमें मालूम है हम हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। जिन्ने मर्जी तरले कर ले, तेनू करजा नहीं हो मिलना। नहीं मैनू पता है, और 9.9% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਲਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਕਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ। ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਰ 5000 ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਅਗਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਦੇਾਂਗੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰੀ ਫਿਰ। ਨਾ ਕਹੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਬਹੁਤਾ ਇਨਸਿਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਪੜਾ। मुझे लग रहा है आप कन्विंस हो रहे हैं। एंड यू टू। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੱਪਦੇ ਆ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। क्या प्रोफेशनल बेगर्स हैं, क्या उनसे भी आपका कोई ताल्लुक है? वो जिन्होंने कार्ड पकड़ा होता है, बच्चे के लिए पैसे दे दे। वैसे भी ना मंगन दे अपने अपने तरीके ने, कोई बंदा एक्सरे फड़दा है, कोई बंदा कार्ड फड़दा है ते कोई बंदा चमोटा फड़दा है। असल गल ही ना जी कि ये काम जो ना मेरी बीवी देखती है, मैं भी फकीर रखे ना, मेरी बेगम ने 25 कुड़ियां रखी इस काम वास्ते जनाब। 25 लड़कियां? बिजनेस करे बंदा खुला करे। मतलब ये तो जुल्म कर रहे हैं आप लोग खुलेआम। दिहाड़ी दे रहे डेली ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦਾ ਐਕਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੈ। है ना, मैं और आप भी बड़ा अच्छा मांग सकते हैं। भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं आई एम। गाड़ी में बैठ के जाएंगे, गाड़ी से बाहर खड़े होंगे, ऐसे हाथ देंगे, वो गाड़ी रुकेगी, हम कहेंगे वी आर नॉट प्रोफेशनल, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, वॉलेट घर रह गया, थोड़े से पैसे दे दें कर्जे हंसने के तौर। अच्छा वैसे ऐसे भी बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं। यू आर वन ऑफ देम। जिस तरह से जिस प्रोफेशनल तरीके से आपने एक्ट करके बताया है ना कि वॉलेट घर रह गया है, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, तो ये कभी क्या एक्सपीरियंस किया है? ਬਾਬਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੰਮ। ਚਿੰਗਜੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 100 ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, अच्छा ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈ ਤੂੰ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕਦਾ। ਇੰਚੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਈ ਮੇਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪੈਡਲ ਲਵਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫੜੋ ਚੈਨ ਲਵਾਤੀ ਤੈਨੂੰ, ਜਿੱਦਨ ਮਰਜੀ ਭੱਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। किस तरह? ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਤਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਾ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰ। खोता ऐसा समझदार सी आके मेरे नाल ही बह गया। किस नाथ खान से आप मुतासिर हैं और किसे फॉलो करती हैं? नाथ खान से मुतासिर पहली तो भाई हैं, चूँकि उनसे मैंने नात की बाकायदा तरबियत ली, और उसके बाद हमारे जो असातिज़ा हैं नात खानी में मोहम्मद अली ज़ौहरी साहब जी, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत अच्छा पढ़ते थे। और इसी तरह खुर्शीद साहब जी की बड़ी खूबसूरत नातें हैं, कोई सलीका है आरजू का, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते। इसी तरह यूसुफ मेमन साहब, हमारे जितने भी लेजेंड्स नात में गए हैं सब ने अपनी अपनी जगह बड़ा अच्छा काम किया है और सबसे ही सीखा है सुन सुन के। डॉक्टर साहब आपका इदारा ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को ढूंढता किस तरह से है? जी हमने सोशल मीडिया के ज़रिए से, फिर कुछ मुख्तलिफ जितने स्कूल्स हैं उनके हेड टीचर्स को हम ख़त लिखते हैं। अच्छा। कि वो मैट्रिक में जो बच्चे अच्छे नंबर लें उनको हमारे पास भेजें। तो इसके अलावा जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जाकर अपने अपने शहर में अपने अपने गांव में बताते हैं। और जिस तरह बहुत सारे और तरीके हैं, माउथ टू माउथ इंफॉर्मेशन मिलती है, वर्ड ऑफ माउथ भी बड़ा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों से ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारी अपनी एक कैपेसिटी है, उसके मुताबिक हम फिर उसमें से मुंतखब करते हैं। एक तो वो इम्तिहान पहले देते हैं, उसके बाद हम भी इम्तिहान लेते हैं उनका। अच्छा। ताकि हमें पूरी तरह ये अंदाज़ा हो कि वाकई कोई नकल वकल करके या इधर उधर से वो नंबर लेकर नहीं आए। फिर हम उनके ख़ानदान का इंटरव्यू भी करते हैं, उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू करते हैं कि आपका बच्चा जो है ये आप इसके बारे में क्या कहते हैं, ये कितना मेहनती है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि वाकई उस ख़ानदान की ज़रूरत भी है या नहीं है। तो इस तरह हम कोशिशें करते हैं। देखिए ये जो भी हमारे पास वसाइल आते हैं ये लोग बड़ी मोहब्बत से देते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि ये दुरुस्त जगह पे इस्तेमाल हों। बेशक। तो इसलिए बेहतरीन बच्चों को ढूंढना और उनके ऊपर इन्वेस्ट करना ताकि कल को वो फिर एक अच्छा शहरी बनकर
جو ریسیپروکیٹ کریں گے اس نیکی کو تو وہ کسی اور کے بھلے کے لیے کام آئے گی. تو اس میں بڑا محنت سے اور پھر چاروں صوبوں میں جانا. ہمارے ادارے میں تقریباً اس وقت کوئی 60-70 اضلاع سے بچے پڑھتے ہیں. کوئی لورا لائی سے ہے, کوئی اسکردو سے ہے, کوئی نارتھ وزیرستان سے ہے, کوئی آزاد کشمیر سے ہے, سکھر سے ہے, بنو سے ہے, راجن پور سے ہے. تو یہ پورے پاکستان کے بچوں کے لیے ہے. اور پھر یہ جو کہ ریزیڈینشل ہے وہ سب ایک ہی جگہ رہتے ہیں تو باہمی محبت کا بھی ایک ماحول پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی زبان, کلچر, شاعری, ابھی جیسے جواد صاحب بتا رہے تھے تو اس دوسرے سے یہ سیکھتے ہیں. ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, ہماری جو ڈارمیٹری ہوتی ہے نا جس میں کمرے میں رہتے ہیں اس میں 4 چارپائیاں ہوتی ہیں, 4 تو ہر ایک صوبے سے ایک بچہ وہاں رہتا ہے. ارے واہ کیا بات ہے. تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دوستی اور محبت پیدا ہو اور انٹر کلچرل ہارمنی بھی ہوتی ہے. ہارمنی بھی ہے, قومی یکجہتی کا احساس ہے اور جو فرق ہے وہ ختم ہوتا ہے, دوستیاں ہوتی ہیں. اب وہ بچے 58 اضلاع میں یا 100-200 شہروں میں ان کے دوست رہ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز آپ کو ایک طاقت بخشتی ہے کہ میں پورے ملک میں میرے دوست ہیں, میرے ساتھی ہیں. تو یہ بہت سارے اس کے فائدے ہیں. تعلیم تو ہے ہی, بالکل, تربیت تو ہے ہی, ایک اچھا شہری بنانا تو ہے ہی, لیکن اس سے کچھ قومی مقاصد بھی ہم اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زبردست, امیزنگ. یکجہتی ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਰ ਜੀ. ਸਾਡਾ ਕੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖੂ ਪੂਰੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਉਸ ਮੰਗਦੇ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ. ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ. ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ. ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. है ना. आजकल जो नात खान हैं वो डफ बजाने वाली टीम या फिर कोरस या ग्रुप के साथ एक कवाली करते हैं. क्या आपने कभी सोचा कि आप भी एक ग्रुप के साथ कवाली करें या इस तरह की कोई कलाम पेश करें? कवाली तो कवाली फॉर्म में जैसे हमारा सूफियाना मैं कलाम करती हूँ, कवाली टाइप ही होता है. उसमें हमारी पूरी टीम होती है और हम परफॉर्म करते हैं. और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आगे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो आप लोगों को सुनने को मिलेंगी इसी तरह. चलें, ज़बरदस्त. गुड लक फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट. और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद. मेहमानों से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं. डॉक्टर साहब, अखवत यूनिवर्सिटी पे कितना खर्च आएगा और इसको तामीर करने में किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखें, ये यूनिवर्सिटी जो है जिस तरह कहते हैं ना कि ये बस्ती जो है एक दिन में नहीं बसती. तो यूनिवर्सिटी, दरसगाहें, तालीमी अदारे एक दिन में नहीं बनते. बेशक. अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 50 एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर तकरीबन 3-3.5 लाख स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया है. तो बच्चे हैं, वहाँ पर रिहाइश का भी है और साथ आपकी जो एकेडमिक ब्लॉक्स भी हैं. तो हमने बड़ी मज़ेदार बात है कि हमने जब ये शुरू किया काम तो हमारे पास तो कोई पैसे नहीं थे. तो हमने कहा कि लोगों से कहते हैं कि भाई एक ईंट खरीद लो. अच्छा. और उस ईंट की कीमत सिर्फ 1000 रुपए. तो हम भी मंगता बन गए, लेकिन एक बड़े काज के लिए, बिल्कुल एक बहुत बड़े मिशन के लिए. तो उस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़रिए से अब हज़ारों लोगों तक बात पहुंचेगी. तो हर आदमी अपने अपने हिस्से की एक एक ईंट खरीदना शुरू कर दे. बिल्कुल. तो ये मुकम्मल होती चली जाएगी. इसमें नए इजाफे होंगे, नए स्कूल बनेंगे, नए कॉलेज, नई फैकल्टीज़, नए डिसिप्लिन. तो इंशाल्लाह देख रहे हैं हम कि कुछ वक्त के बाद हम तो नहीं होंगे. तो जैसे अभी जवाद साहब ने कहा कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, तो उजाले ही हैं इस मुल्क में. आने वाले दिन जो हैं इसमें हमें रोशनी नज़र आती है. ये दरसगाहें और बनेंगी और बहुत से लोग हमारी जगह पर आएंगे इंशाअल्लाह. डॉक्टर साहब, लोग देना चाहते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि मेरा पैसा ज़ाया तो नहीं होगा. जी, यही बात है कि अगर आप दयानतदारी से और शफाफ निज़ाम बनाकर अपना दिखा दें लोगों को, तो देने वालों की अच्छे मकासद के लिए कमी नहीं है. तानू देने वाले दी नहीं, एननू देने वाले. देने वाला क्रेडिबिलिटी देखता है, ऐसी शक्लें नहीं देखता. डॉक्टर साहब का माजी गवाह है कि जिस मकसद के लिए इन्होंने पैसे लिए हैं उसी मकसद के लिए खर्च किए हैं. क्या बात. और अरबों के प्रोजेक्ट्स हैं, जितने पैसे हैं उतनी ही ट्रांसपेरेंसी है. वाह. आज मैंने आपको इसलिए शो में बुलाया कि डॉक्टर साहब से कुछ सीखें.
अपने लिए मांगना बहुत आसान है, कौम और मिल्लत के लिए मांगना बहुत मुश्किल है। ਇਹ ਕੁੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਉਧਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। मैं नोटिस कर रही हूँ कि जो बंदा बोलते हैं आप उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि मिस सीना जी मैं ना बोला नहीं, लाइट ब्लू ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, बहुत अच्छे लग रहे हो। आपको तो नजर नहीं आता, इतना एक्यूरेट आपने कैसे गेस कर लिया? ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕਿਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਐ ਜੇ ਅੰਨਾ ये तो अंधे बने हुए हैं भाई। डॉक्टर साहब आप इन लोगों की मदद करना चाह रहे थे, ये तो सारे फ्रॉडी हैं भाई, ये तो मुल्क को लूट रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, पता नहीं कहाँ इतना पैसा आप लोग लेके जाएंगे। लोग बाजी जी लुटे जान रहे हैं, 10 रुपये ने कितना लुटे जाते होने। आप लोग कौन सा 10 रुपए का नोट ले लेते हैं? आप लोगों की भी डिमांड होती है, लाल नोट ही चाहिए। बाजी लाल नोट उन्होंने यकीन करो मेरे वाला नोट फड़ाते होंदा 10 रुपये ही। ये अंधे नहीं है, ये हम लोगों को अंधा बना के ना हमसे पैसे निकलवाते हैं। एग्जैक्टली। निर्मल भी बहुत अच्छी लग रही है, मैरून सूट पाया है। और तू अन्ना है। मैं अन्ना जरूर है, लेकिन मैंने कुड़ियां नजर आउंदियां ने। अच्छा, एक शर्त पे मैं आप लोगों को जाने दूंगी, वो शर्त ये है कि आप लोग मुझसे वादा करें कि आप लोग ये बेगिंग छोड़ देंगे, लोगों से भीख मांगना छोड़ देंगे, डॉक्टर साहब से आप लोग कर्जे हंसना लेंगे, अपना कारोबार शुरू करेंगे, इज्जत से रोटी रोजी कमाएंगे। जी ठीक है, मैंने पैसे ला दो, मैं स्कूल नहीं आपको तो देने ही नहीं है, आपका तो प्रॉपर एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। आप तो कह रहे हैं कि दुकान के बाहर आप मांगना शुरू कर देंगे। मिसी ना तुसी मेरा जमीर जगा देता है। अरे वाह वाह वाह। लो जी, ये भी हमजा शहबाज ने वोट पाएगा। जमीर जाग ही गया है तो अब अंधे होने की एक्टिंग तो ना करो ना। सही बात है, अब ऐनक उतारें और सबको बता दें कि आपको बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। मैं ऐनका ला दे दित्तियां मिसी ना जी, हुण मेरियां अखां च अखां ना पाया जी, तुसी मेरा जमीर जगाता। मेरे को ना अद्धा हाथ आए, मैं इन्हां को कर्जा लैके छत के ते बच्चियां नूं ट्यूशन पढ़ाया करा। अरे वाह वाह भाई, तालियां हो जाए। लेकिन जमीर ओदा जागदा हुंदा जिहदा सुत्ता होवे, तेरा मरिया होया वा। इन्हां जी मैं लेकिन 2 महीने मंगना वा। क्यों? मेरे सिर ते पैसे चढ़े आ, क्योंकि मैं अपने जमीर नूं जगाउणा तो है, मैं एक बारी जगावांगा, मैं फिर उस तो बाद उन्हें सुनावांगा नहीं, मैं मेहनत करांगा, मैं मजदूरी करांगा, लेकिन इन्हां दे पैसे मैं टाइम नाल वापस करांगा ताकि अगली बारी होर लै सकां। तू का इस तरह कर 6 महीने मंगना, ठीक है? अच्छा जी, 5 लाख मेरा भी देना तू पुत। भाई आपके कॉन्ट्रैक्टर को तो अब बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्हीं को आ रहा है सबसे ज्यादा गुस्सा, अब आपका कारोबार तो ठप हो गया। इन्ना जी मेरा नहीं काम बंद होंदा, 3 मेरे इत्थों निकल गए ना, मैं वो सामने 3 फड़ लेने। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੀਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਈ। ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਣਾ। वेरी गुड वेरी गुड। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। आप नहीं सुधर सकते, आपकी वजह से ये लोग भी खराब हो जाएंगे। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 500 रुपये ਦਿੱਤਾ, मैं कितना सुधर जावां? ओहो तुम 500 पे रो रहे हो, डॉक्टर साहब तुम्हें 40,000 देंगे। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ये आपकी नीयत में कुछ खराब लग रहा है कि आपने कुछ इससे पैसों से कोई कारोबार नहीं करना, खा पी के फिर से आपने यहाँ बैठे होने। मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, 40,000 रुपया मैं वजह लेना वा, वजह ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। मुझे नहीं भाई आप पे यकीन आ रहा है, आई एम रियली सॉरी। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, फिर वो देंगे। प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, प्रॉपर चेक इन बैलेंस होगा, ऐसे थोड़ी वो आपको 40,000 रुपए दे देंगे। इतने मेरे को गेड़े लगने नहीं, मैं फिर रास्ते जो जाना होना ना तो फिर मेरा दिल करना। मैं ये कहता हूँ कि जो पैसे हम देते हैं वो इतनी बरकत वाले हैं जी, और हम उसको इतनी नेकनीयती से और इखलास से देते हैं जी कि लोगों की काया पलट जाती है। अरे जितनी बातें इन्होंने की है ना, और ज़मीर भी जागे हैं और उन्होंने वादा भी किया है, तो थोड़ी सी मेहनत हम और करेंगे, इनको काम करना सिखाएंगे। अरे वाह। और उन लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने ये पेशा छोड़कर अच्छे काम किए हैं। तो मुझे यकीन है ज़िंदगी जो है ना वो उम्मीद का नाम है। अरे वाह, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्या बात है।